merchant circle part. Okay, yeah. So we in the last two sessions we studied cutting forces in orthogonal cutting, then assumptions of merchant circle theory, then merchant circle we studied, various forces in the last session we studied, then correlation between all these forces and terms we saw. Tan phi is equal to r cos gamma upon 1 minus r sin gamma that we saw. Chip so this was the relation for finding out phi. Then merchant circle, what we also derived the relation phi is equal to it is relationship between phi beta, that is friction angle, and gamma, that is rake angle. Phi was a shear angle, friction angle, and rake angle. So this was the relationship. This is ideal condition. Actually, cos 2 phi plus beta minus gamma is equal to 0. They are saying. So 2 phi plus beta minus gamma is equal to pi by 2. Actually, ideal conditions are not there. Some departure from ideal conditions are there. That's why C is always less than 90 degree. But for ideal condition, for equation point of view, for finding out various values, we take the ideal condition, and that's why we apply this relationship. Okay, this 2 phi plus beta minus gamma is equal to pi by 2 or cos this. This means same. So this is a relation. Means what we do, we find out phi using this formula. Later on, we also chip thickness ratio, that relationship we studied, T upon Tc, and it is always less than 1 we saw. Because Tc after heating is having more dimension than T, that also we studied, and we came to this conclusion: tan phi is equal to r cos gamma upon 1 minus r sin gamma. Gamma rake angle we select while starting the machining operation. T and Tc we measure. The T is a depth of cut, that is chip thickness before cutting, that is depth of cut, and T1 is the we measure after that chip is formed, so that thickness is also measured. So T is known, T1 is known, so R is known, and gamma, that is the rake angle we decide for cutting tool sharpen करते time ही हम लोग decide करते, so we can find out phi. After finding out phi, we put this phi in this equation. किधर गया वो? हाँ, ये इक्वेशन में हम लोग फाई डालने के बाद ये बीटा और ये गैमा तो मालूम है अपन को, तो बीटा आपको मिल जाता है। तो ये एक है, और ये सब मिलने के बाद हमको ये जो स्टार्टिंग के जो 4 इक्वेशंस है ना, ये मैंने बोला था फाइंड आउट एफ एस, तो ये देखो एफ सी और एफ टी है ना, ये डायनामोमीटर से मिलता है, मतलब वो प्रॉब्लम में दिए जाते हैं। व्हेनेवर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज गिवन टू यू, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का क्या हो गया अभी मालूम है क्या, कि आपका जो बुक्स है ना, वो बुक्स अभी मैं आपको डिलीवर नहीं कर सकता। आई हैव सम नोट्स, मैं थोड़ा सा वो ढूंढ के रखता हूँ, आपको सेंड करता हूँ। So it consists of some solved problems also. At the end of this theoretical session, we will cover 1 or 2 problems of this, and of tool life also 3 problems we will discuss in the session. But for your helping, for your study at home, I'll send some notes also on the mail. I'll soon send the notes. बाद में जब टाइम मिलेगा ना, एलएमएस पे भी डालता हूँ। एलएमएस पे डालने का प्रॉब्लम क्या है बच्चों मालूम है क्या, टाइम बहुत लगता है, एक फाइल डालना पड़ता है, ऐसा सिलेक्ट करके एक साथ नहीं भेज सकते, वो उसका प्रॉब्लम है। फिर भी वो अभी काफ़ी सुधर चुका है, मतलब उन्होंने डायरेक्ट एक फाइल डालने के बाद में डायरेक्टली वो फोल्डर खुलता है। पहले फिर से वो प्रोसीजर करना पड़ता था, और एक फाइल डालना पड़ता था, दिन भर हम लोग ऐसा फाइल डालते रहते थे, तो वो उसमें प्रॉब्लम है। गूगल का फायदा क्या है कि आप आपने फोल्डर सिलेक्ट किया, एक फाइल पे क्लिक किया और सिलेक्ट किया ना, वो पूरा का पूरा आपको जा जाए आपके गूगल ड्राइव पे भी फिर ओपन होगा। तो अपना टाइम भी बचता है, प्लस मेल पे हमको मालूम पड़ता है कि ये बच्चों को
क्या क्या दिया अभी तक और उसके आगे वाला। तो ये थोड़ा सा हमको, और मेल मेल और गूगल ड्राइव हमारे आमने सामने है, तो हमको ये मालूम पड़ता है कि बच्चों को क्या गया क्या। एलएमएस फिर से सेपरेटली हमको खुलवाना पड़ता है, इसलिए आपको वो इस पे दे दिया। एलएमएस पे मैं एकदम लास्ट में डालूंगा, मतलब एक 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 करके जब आपकी एग्जाम डिक्लेयर होगी वो टाइम में एलएमएस पे भी डालूंगा। फिलहाल तो आपके पास वो मटेरियल दे दिया है। तो व्हाट आई वाज टू से, एफसी इज गिवन इन द प्रॉब्लम, एफटी इज गिवन इन द प्रॉब्लम। एफसी इज स्लाइटली मोर देन एफटी। एफ टी इज अ थ्रस्ट फोर्स, एफ सी इज अ कटिंग फोर्स। तो ज़्यादा डायरेक्टली आ जाता है ना टूल पे, तो वो वर्टिकली जो आता है ना वो तो एफ सी है। तो एफ सी एफ टी मालूम है। फाई अभी हमने कैलकुलेट किया वो फॉर्मूला, आर कॉस अल्फा अपॉन 1 - आर साइन अल्फा, दैट इज फाई। तो वो फाई मालूम है। यहाँ पे हमको गैमा भी मालूम है, वो भी दिया है ना इसमें। तो ये एफ भी मिलता है। व्हाट इज एफ? एफ फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट इज एन? एन इज अ नॉर्मल टू फ्रिक्शनल फोर्स। देन दिस इज shear force and this is a normal to shear force। तो ये चार आप लोगों को थोड़ा सा बाय हार्ट मारना ही पड़ेगा ये इक्वेशन। ये करना ही पड़ेगा आपको। इसके डेरिवेशंस भी दिए हैं नागपाल में, थोड़े से बड़े हैं वो, तो हमने वो अवॉइड किया जनरली, क्योंकि बिकॉज इट वाज गिवन एज इट इज, तो वो कॉपी करने में कुछ मतलब नहीं है। इसलिए मैंने वो उसके जो ग्लिम्स है एकदम उसका जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो ये कर दिया। तो ये चार आपको याद करने हैं। बाद में ये फार्मूला याद करना है और बाद में ये फार्मूला याद करना है। हाँ, ये फार्मूला याद करना है। इसका प्रूफ एग्जाम में बहुत आता है। इसका बाद में ये भी प्रूफ आता है। कौन सा? शेयर प्लेन एंगल का, ये वाला प्रूफ। ये ये प्रूफ, ये भी प्रूफ आता है। देन थर्ड प्रूफ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नहीं, और एक हमने लास्ट टाइम टर्म देखा था, चिप कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट। एंड k is L upon LC. So this is reciprocal of 1 by R. So because R is less than 1 always, k is always greater than 1. तो वो एक याद रखो आपको, चिप को कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट। कभी कभी R फाइंड आउट करने को बोलता है इसमें एग्जाम में, और कभी कभी चिप कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट k फाइंड आउट करने को बोलता है। तो आप वो रिलेशनशिप याद रखना। इसमें नाउ डिफरेंट वेलोसिटीज इन चिप फॉर्मेशन, ये हमको आज के एपिसोड में लेना है। So today's episode is starting from different velocities in chip formation। ये थर्ड डेरिवेशन है, आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये थर्ड डेरिवेशन है यहाँ तक। तो ये हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये जब हमारा चिप चालू, ये चिप कटिंग प्रोसेस जब चालू होता है, तो हमारा कौन सा वेलोसिटी जिसमें आता है, हम लोग थोड़ा सा चेक करेंगे। देखो, ये शेपिंग ऑपरेशन दिख रहा है आपको। this tool is moving in from right to left, and this is the depth of cut, and this is the chip which is formed. Now this is the angle, shear angle phi. Now what are various velocities? This is a cutting velocity v. Okay, v is a main cutting speed, meters per minute। that is the shaper, मतलब वो रैम घूमता है ना, क्रैंक एंड स्लॉटेड मैकेनिज्म का, एक बार वो आरपीएम चालू हो गया तो वो रैम घूमता है ना ऐसा, स्लो फॉरवर्ड फास्ट रिटर्न, स्लो फॉरवर्ड क्विक रिटर्न। तो वो जो स्लो फॉरवर्ड वाला जो स्पीड है ना, वो ये वी है, मेन कटिंग स्पीड मीटर पर मिनट। देन ये कौन सा और रहता है, ये गैमा है। एक मिनट, हाँ, ये चिप वेलोसिटी। ये देखो, चिप के लिए हमने सी ले लिया, चिप वेलोसिटी। तो नाम भी ऐसा ही लेने का, चिप वेलोसिटी, इसलिए सी। वी एस सादा है अपना मेन कटिंग स्पीड, तो अपना प्रोसेस का, इसलिए वो लिया। और वी एस जो बोला है ना, तो एस स्टैंड्स फॉर शेयर, तो वेलोसिटी ऑफ शेयर, इसलिए वो वी एस दे दिया। तो वो नाम ही हम ऐसा ले रहे कि वो डालने के बाद ही हमको उसका लॉन्ग फॉर्म मालूम होना चाहिए। तो ये सब ले लिए, उसको यूनिट बराबर लेना है, मीटर्स पर मिनट। ओके, दैट इज द कॉमन यूनिट फॉर दैट। तो ये तीन वेलोसिटी, अभी ये तीन वेलोसिटी में कुछ रिलेशन है क्या, ये हमको देखना है। तो अभी ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वेलोसिटी ऑफ शेपिंग क्या है, 2 × L अपॉन टाइम फॉर कटिंग प्लस टाइम ऑफ रिटर्न, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ शेपिंग। ओके, 2L बोले तो क्या, L इज द लेंथ ऑफ कटिंग, लेकिन वो उसको रिटर्न आने में भी थोड़ा सा टाइम, मतलब रिटर्न का टाइम भी पकड़ते हैं ना, क्योंकि एक स्ट्रोक जो है वो कैसा है, फॉरवर्ड होके जब रिटर्न आता है तो वो एक स्ट्रोक पूरा होता है। भले क्विक रिटर्न, वेरी क्विक, but it has to be it has to be taken in the calculation ना। So velocity of shaping is total distance upon time, अपना बेसिक। तो डिस्टेंस कितना है, 2L
फॉरवर्ड स्ट्रोक प्लस रिटर्न स्ट्रोक, ये हो गया 2L, दैट इज द लेंथ ऑफ कटिंग डिवाइडेड बाय टाइम फॉर कटिंग, कटिंग के लिए जो टाइम गया वो प्लस टाइम फॉर रिटर्न. ओके, सो दिस इज द रिलेशनशिप मोस्टली 2:1, इज नॉट नेसेसरीली 2:1, थोड़ा कम ज्यादा होता है बट आइडियली इट इज 2:1. वो जो देखा था ना हमने 240 और 120 एंगल शेपिंग का, फॉरवर्ड स्ट्रोक और रिटर्न का, बच्चों याद आ रहा है? गिव मी फीडबैक. बिकॉज आई कांट सी फेसेस. क्लास में जब पढ़ता हूँ तो बच्चे ऐसे ऐसे मान हिलाते हैं, हाँ हाँ सर वो ऐसे, तो ऐसा मेरे को अभी दिख नहीं रहा है ना, आप मुझे देख पा रहे हो लेकिन मैं तुमको देख नहीं पा रहा हूँ, यू आर इनविजिबल. हाँ, सो ये तुम्हारे एक्सप्रेशन से ही मालूम पड़ेगा. तो ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ शेपिंग है. आगे हम लोग देखेंगे, ये देखो. हाँ हाँ, एंड वी इन केस ऑफ टर्निंग इट इज पाई डी, एन सर्कुलर है ना मोशन, सो पाई डी यानी पाई डी क्या, सर्कम्फरेंस इनटू एन, वो आरपीएम. सो पाई डी एन अपॉन 1000, दिस इज टर्निंग मीटर्स पर मिनट. ये फिर से, हाँ, तो वो यूनिट मैं भूल गया, वो वही है. हाँ, सो हम लोग क्या करेंगे, ये इधर ये जो इधर जो ट्रायंगल तैयार हो रहे हैं ना, ये वी एस और ये फाई, हाँ, तो ये इधर इमिटेट करने की कोशिश करेंगे. देखो ये इधर हम इमिटेट करने की कोशिश करेंगे हम लोग. ये फाई, हाँ, ये चिप का अपना ये है, ये चिप का पोर्शन है ये जो बाहर जा रहा है. तो ये चिप का पोर्शन जो बाहर जा रहा है, वो ऐसा ऐसा जा रहा है. और ये तुम्हारा इसका एंगल कौन सा, रेक एंगल, इसको पैरेलल है. ये एंगल अपना फाई है ना, तो ये एंगल भी आपका इसको पैरेलल ऐसा ही जाता है ना चिप, तो ये एंगल भी आपका गैमा हो गया. ये गैमा है तो ये भी गैमा हो गया. ये देखो ये वाला, तो ये इधर ले लिया गैमा. अभी ये फाई है, ये फाई इधर है, वो फाई लिया. अभी हम क्या करेंगे अभी, यहाँ से इसको एक परपेंडिकुलर मारेंगे ऐसे ऐसे इधर एक परपेंडिकुलर मारेंगे यहाँ पे. तो और अलग अलग नाम हमने दे दिया, ए बी. ये परपेंडिकुलर मारने के बाद इधर सी आ गया. ये वी एस है, शेयर वेलोसिटी. ये देखो ये वी एस है. तो थोड़े इन शॉर्ट क्या किया, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन को हाईलाइट किया हम लोग. हाँ, ये सैटेलाइट से देखते हैं ना ऊपर से लोग किधर क्या हो रहा है, वो एकदम जूम करते हैं, तो इसको हमने जूम किया अभी. ऐसा ऐसा मैन्युअली जूम किया हमने. हाँ, ये देखो ये हमने बड़ा बड़ा कर दिया उसको. और अभी इसमें हम लोग ट्रायंगल लॉ लगाएंगे. तो ये प्रोसीजर जो जो किया है ना अपन ने, वो ये इधर में दे दिया है, ड्रॉ ओ ए अलोंग वेलोसिटी वी वगैरह, ये सब आपको दे दिया है. देखो ये जस्ट रीड दिस, एक एक मैं थोड़ा सा आपको फिगर भी ये दिखाता हूँ, और ये यहाँ तक आप देख लो, एंड देन यू कम टू दिस. जस्ट सी दैट इट्स वेरी क्लियरली रिटन. टेक योर टाइम and check whether we are doing it correctly or not. ट्रायंगल लॉ का यूज किया है हर जगह. देखो बच्चों, ये अगर फाई है ये वाला, तो ये भी फाई है ना ऐसा. हाँ, ये भी फाई है, फाई टोटल, मतलब ये डॉटेड लाइन से लेके ये डॉटेड लाइन ये फाई है. तो हमने क्या किया, और ये इधर का गैमा है. हाँ, इधर का, तो ये जो छोटा वाला है ना एंगल, ये फाई माइनस गैमा हो गया. हाँ, इतना. दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय दैट फिगर. ओ बी वी एस है, ए बी वी सी है, एस कटिंग वेलोसिटी. हाँ, देन फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ ए सी परपेंडिकुलर, या बाकी सब. हाँ, ये देखो फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए सी, किधर गया ओ ए सी, ओ ए सी. ओ ए सी में क्या किया है, ए सी बार, ए सी इज इक्वल टू ओ ए साइन फाई, बराबर है. साइन रिलेशनशिप फ्रंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, करेक्ट. सो बट व्हाट इज ओ ए, ओ ए, सो इट इज v साइन फाई, बराबर है. ये v है ना, ये कटिंग वेलोसिटी v है. ये वेक्टर निकाला ना, वो वेलोसिटी वेक्टर. हाँ, तो ये v है, ये vc है, और ये vs है, बराबर. तो ये ac हो गया.
सो इट इज वी साइन फाइव हो गया AC करेक्ट। अभी ट्रायंगल ABC में क्या किया है, छोटे ट्रायंगल में आई है ABC में BAC इज फाइव, सो AC इज इक्वल टू AC यानी ये छोटा वाला, इट इज इक्वल टू VC cos phi minus gamma, okay, and AC is equal to then AB cos phi minus gamma. So AB is actually AB is VC बराबर है कटिंग वेलोसिटी में। सो फ्रॉम 1 and 2, ये 1 and 2 से क्या किया हम लोग, दोनों के जगह AC मतलब AC कॉमन था ना, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल में AC कॉमन था, तो AC का वैल्यू दोनों के टर्म में निकाला, तो उसमें एक VC के टर्म में निकला और एक V और VS के टर्म में निकलेगा ना, तो इसलिए हमने ये दोनों को इक्वेट किया बाद में, तो हमको क्या मिला, V और VC का रिलेशनशिप मिल गया। ओके, V और VC का रिलेशनशिप मिल गया, ये पहला पार्ट हो गया। नाउ R is a cutting ratio. R is a cutting ratio which is uncut chip thickness to chip thickness, that is depth of cut upon this thing. So it is why it is written sin phi upon cos phi minus gamma. But R is cutting ratio. That is, where is cutting ratio? Something is missing here, I think. Yeah. So this is equal to actually sin phi upon cos phi minus gamma. So this is actually the cutting ratio, sin phi upon cos phi minus gamma. Where is sin phi? Hello, sir. हाँ बोलो, just a minute. Sir, Step is missing, I think. हाँ बोलो। सर V और BC के बीच का एंगल 90 माइनस गामा होना चाहिए ना, 90 माइनस 5 होना चाहिए ना। कौन सा V और VC का ना? हाँ सर। नहीं, लेकिन ये V और VC का हमको नहीं चाहिए। देखो हमको ये छोटा वाला चाहिए, छोटा वाला। वो कैसा निकाला हमने, मैं बताता हूँ। ये देखो, ये फाई है, ये फाई है, हाँ? तो ये फाई है, तो ये फाई है कौन सा, दोनों डॉटेड लाइन में से जो डिस्टेंस है वो, और सॉरी एंगल है वो फाई है, लेकिन ये जो डार्क लाइन है वो और ये डॉटेड लाइन में से ग्यामा है, इसीलिए वो फाई माइनस ग्यामा, ये छोटा एंगल है। ये छोटे एंगल में हमको इंटरेस्ट है। ये छोटे एंगल में हमको क्यों इंटरेस्ट है, because we want to finalize the relationship between AC and AB, that is VC। ये VC इधर लिखना मैं भूल गया, शायद भूला नहीं, इधर ऊपर लिखा है मैंने, क्योंकि इधर गामा मुझे लिखना था, ये छोटा छोटा फिर बहुत बड़ा ट्रायंगल मेरे को निकलना पड़ता अननेसेसरी। तो एक्चुअली ये AB यानी ये VC वेक्टर है, तो ये AB VC का मैग्नीट्यूड है वो, तो ये VC के टर्म में AC एक्सप्रेस किया, और दूसरे ट्रायंगल में V के रूप में हमने AC फाइंड आउट किया। तो AC इज अ कॉमन, दैट्स व्हाई हम लोग V और VC का रिलेशनशिप यहाँ पे कर पाए। ये देखो ये, और ये साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस गामा जो है ना, तो ये इसके साथ जो एक अटैच्ड ये है एक क्वांटिटी, ये दोनों निकल जाते हैं, वो डायरेक्टली एक स्टेप में आगे गया। साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस गामा इज कटिंग रेशियो R, so as per the standard equation, so कटिंग रेशियो कौन सा है एक्चुअली, दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस, तो ये दिस डिस्टेंस हाउ यू कैन डू दैट, VC साइन फाई अपॉन ये VC cos फाई माइनस गामा, तो VC चला जाएगा ऐसा है, तो दैट्स व्हाई इट इज V इज इक्वल टू ये VC इज इक्वल टू sorry not VC, कटिंग रेशियो R इज इक्वल टू साइन फाई अपॉन cos फाई माइनस गामा। तो ये जो पोर्शन है ना, दिस इज नथिंग बट R, so the equation is VC is equal to V into R, so this is the first equation, you are finding the relationship between VC and V, okay। अभी हम लोगों को क्या करना है कि ये जो VS है यानी शेयर वेलोसिटी, इसको इसके बीच में लाना है इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने अभी क्या ये किया कि
यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, ये अब तक नहीं था शायद। यस हाँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला अभी। ये जो है ना, ये शेयर प्लेन का एंगल है फाई, लेकिन यहाँ से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हमने डाला, और वो कौन सा डाला अभी, ओ डी। ये परपेंडिकुलर डाला। ये लगता है ये परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं है वो, मतलब ओ बी इज नॉट परपेंडिकुलर टू ए बी। हाँ, ये वो चिप के एंगल से लिए है। तो एक्चुअली फिर यहाँ से ओ से हमने एक परपेंडिकुलर ए बी पे डाला, तो वो पॉइंट डी पे आ गया। सो दिस इज द परपेंडिकुलर थिंग। तो जैसे ये एंगल टोटल फाई है, और ये अपना ग्यामा है, तो फाई माइनस ग्यामा ये भी एंगल हो गया। जैसे इधर भी एक हुआ था ना, फाई माइनस ग्यामा, ये छोटा एंगल, वैसा यहाँ से परपेंडिकुलर डालने के बाद भी वो फाई माइनस ग्यामा हो जाएगा। और ये अब ये 90 डिग्री आ जाएगा। नाउ यू कैन अप्लाई द फ्रॉम ट्रायंगल एओडी। एओडी कहाँ गया, एओडी। एओडी में क्या किया उन्होंने, ओ ए कॉस ओडी इज इक्वल टू, अभी देखो ये दो ट्रायंगल में ओडी कॉमन है ना, तो ओडी दोनों के टर्म में हम लिखेंगे, वी के टर्म में और वी एस के टर्म में। तो वी और वी एस के साथ रिलेशनशिप आ जाएगा, वी और वी सी का ऑलरेडी आ गया, इसलिए तीनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो वो बाय ट्रायंगल लॉ हमने ये सब देखा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 ये आ गया हमारा, वी एस इज इक्वल टू, ये देखो दिस इज इक्वल टू दिस, सो वी एस इज इक्वल टू वी कॉस गैमा अपॉन कॉस फाई माइनस गैमा। एंड हाउ यू विल फाइंड वी यू विल फाइंड फ्रॉम दिस, vc is equal to cutting velocity is equal to v into this r. R is known, vc is given cutting velocity, because that is decided as a basic parameter of when you start the process. कौन से स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, वो तो अपना शेपर मैकेनिज्म हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अगर टर्निंग में करना है हम अपन को, तो पाई डी एन अपॉन, मतलब अपना आरपीएम डिसाइड करेगा। जॉब का डायमीटर तो हमको मालूम है, पाई डी इंटू कितने आरपीएम से हम घुमाएंगे, उसके हिसाब से हम गियरिंग सिस्टम सिलेक्ट करेंगे। सो ऑल दिस टर्म्स आर इन आवर हैंड। So when your selected parameters are in your hand, then V is known to you, and now V is known to you, R is also known to you. Then because T and T1 is given, T1 later on we can measure when start the process. So VC can be understood, cutting velocity, sorry, chip velocity can be found out, and when chip velocity can be found out, and shear velocity we can found out by V cos gamma upon cos phi minus gamma. तो ये जो दो रिलेशन है ना, तो ये एक प्रूफ आता है एग्जाम में। तो ये तीन प्रूफ है ना, ये हमेशा अपने मुंबई यूनिवर्सिटी में सालों से पूछे जा रहे हैं। मैंने 1981 से लेके पूरे पेपर्स में, पुराना टीचर हूँ यहाँ का, 92 से हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। जस्ट अ मिनट है बच्चों, जस्ट अ मिनट। हॅलो, हा माझाच आहे, बोला ना। हा हो, गेलो होतो ना, हो। हा, खापर्डे सरांबरोबर गेलो होतो। हा, आता बोला ना। एक मिनिट, तुम्ही जरा नंतर फोन करता का, माझं लेक्चर चालू आहे। P1चं लेक्चर चालू आहे माझं, सेकंड इयरचं। तुम्ही नंतर करा फोन। हो। हाँ, तो हमारा हम लोग क्या कह रहे थे। हाँ, तो ये वीसी का ये तीसरा डेरिवेशन है। तो ये पूरा मैंने ये यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस छान मारे, तो ये तीन डेरिवेशंस में आते हैं। कभी कभी एक और एक छोटा सा आता है, वो शेयर स्ट्रेन का है। तो वो भी मैंने मेरे नोट्स में इंक्लूड किया। दीज आर ऑल द हैंडमेड नोट्स बाय मी। ये मेरे पहले स्लाइड थे पुराने, ये देखो ये स्लाइड दिख रहा है ना प्लास्टिक का, बाद में उसके हमने फोटो करके ये निकाले। अभी इतना मेहनत किया, तो प्रिंट आउट लेने से अच्छा है ये, क्योंकि कलर कोड आपके लिए यूज किया, तो उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना। ओरिजिनल ये था, बाद में ये आया, जैसे यहाँ पे अभी हमने कर दिया कि पहले ये था, फिर ऐसा आ गया। सो दिस इज वन स्मॉल डेरिवेशन शेयर स्ट्रेन का। हाँ, ये कभी कभी एक 5 मार्क के लिए आता है, ये भी आता है। शेयर स्ट्रेन का एक फॉर्मूला है, शेयर स्ट्रेन। एक पर्टिकुलर जो पार्ट ऑफ द चिप है, वो बाद में शेयर होने के बाद उसका शेप कैसा हो जाता है। तो ये सब सॉम में आप लोग सीख रहे हैं ऑलरेडी। तो दिस स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ वगैरह, सॉम के पहले ही चैप्टर में आप लोग
पूरा पढ़ाई कर रहे हैं. सो दिस इज आई एम लीविंग इट टू यू. शियर स्ट्रेन वगैरह, हाँ, ये सब ट्रायंगल लॉ पे बेस है. एंड शियर स्ट्रेन इज गिवन बाय cot phi plus tan phi minus gamma. What is phi? What is phi? Phi is our this one shear angle, and gamma is our rake angle. Gamma और अल्फा, gamma और अल्फा को सेम ट्रीट करो, क्योंकि क्या है कि टेक्स्ट बुक में नागपाल वगैरह के या पीसी शर्मा वो अल्फा कहते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी आईआईटीज ये गामा कहते हैं. तब आईआईटी राउरकेला या आप लोग अलग अलग ये देखोगे वीडियो में, आईआईटी के तो वो गामा कहेंगे, और सिंपल जो बाकी जो है वो अल्फा कहेंगे. तो हम लोग दोनों को सेम ट्रीट कर रहे हैं. तो जिसको जो लगे वो आप लोग ले लेना, लेकिन शेयर एंगल हमेशा फाई ले लो. ये हर जगह कॉमन है. फाई 95% पीपल टेक फाई एज अ शेयर एंगल. और ये जो है ना बीटा, इट इज टेकन फॉर फ्रिक्शन एंगल. जो इसमें काम नहीं आ रहा है, फ्रिक्शन एंगल का इसमें कुछ सवाल नहीं आ रहा है. सो स्ट्रेन इज गिवन बाय cot phi, और ये उसका छोटा सा डेरिवेशन है. दिस पोर्शन आई हैव टेकन फ्रॉम नागपाल एज इट इज. ओके, तो इसमें नागपाल में अच्छा दिया है. देयर इज one more way we are coming to this conclusion, but this I found easiest by triangle law, आमने सामने. जैसे ये यहाँ पे जैसे ही डिफॉर्म होता है ना, तो ये जो छोटा होता है ना ए बी सी, इसको हमने बड़ा किया यहाँ पे ए बी सी को, और फिर ये सब आपके जो डेल्टा एस डेल्टा वाई यानी वो दैट इज डिफॉर्मेशन आफ्टर स्ट्रेनिंग, दैट इज टेकिंग द न्यू पोजीशन. तो वो कितना गया हम लोग, चेंज इन द लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, दैट इज स्ट्रेन ना. सो लाइक दैट इट इज डन. तो ये यहाँ पे हमने वो सब किया है. So it has come to cot phi plus tan phi minus gamma. So it is of this one shear strain. Then specific cutting energy. So it is there is one formula here for specific cutting energy. This is self-explanatory. So when they find the specific cutting energy, so then you apply this formula straight. It is Fc is a cutting force into V. V is a cutting velocity meters per minute. Then you get B into T, that is breadth and into thickness of the chip. Okay, into velocity आ गया, तो V भी गया. Fc upon B into T is a specific cutting energy. Specific cutting energy means Fc cutting force, force divided by that area of chip. In short, specific cutting energy. ये मतलब स्ट्रेस जैसा है. स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन ये है ना एरिया, वैसा ही है. देखो स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी इज इक्वल टू स्पेसिफिक मीन्स पर यूनिट. तो ये टोटल एरिया को हमने डिवाइड किया बी इंटू टू. बी मतलब वो जो विड्थ है चिप का, वो फ्रंट व्यू में नहीं दिखेगा आपको, टी हमको दिखेगा. ओके, सो दैट इज स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी. और ये हमारा आगे का एक फॉर्मूला हम देखेंगे. ऐसा प्रॉब्लम में यूज होते हैं, या ऐसा ये जो है ना, ये चीज ये अभी ये जो है ना वो फोर्थ प्रूफ हो गया. ये फोर्थ प्रूफ, हाँ ये फोर्थ प्रूफ था. 2 साल पहले लुकमान सर ने हमारे एक एग्जाम में पूछा था. ये बच्चे वो 3 करके गए, लुकमान सर ने गूगल ही डाला कि दैट टाइम ही वाज टीचिंग टू द ए डिवीजन, तो उनके पास पहला पेपर था. उन्होंने ये पूछा, सिंपलेस्ट था, लेकिन बच्चे गड़बड़ में पड़ गए. अरे यार ये तो हमने किया ही नहीं. हाँ तो भाई हमने तो नोट्स में किया था, तो इसलिए बच्चे बच गए, क्योंकि ये अपना प्लानिंग ही ऐसा किया है कि भाई इसका ये नहीं होना चाहिए, इसमें से कोई स्किप नहीं होना चाहिए. मैंने गेट्स के भी पेपर देखे, गेट्स में भी आता है ये कभी कभी, नॉट एज अ प्रूफ आता है, बट दे यूज दैट. इसमें क्या कहते हैं वो, एमसीक्यू में आता है, द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेन इज आउट ऑफ. फिर ये कॉट में प्लस माइनस में खेलेंगे, ये फाइव में खेलेंगे, इसमें मजीद में फ्रिक्शन एंगल डालेंगे, इधर प्लस खेलेंगे, तो आदमी को कंफ्यूज हो जाता है यार इसमें से कौन सा है. तो वो टाइम ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है. तो गेट में तो हाँ ऐसा प्रूफ ज्यादा नहीं आता है, लेकिन ऐसा एमसीक्यू में वगैरह बहुत आता है, गेट में भी है. तो बी कॉशियस. अगर आपको किसी को टेक्निकल एरिया में जाना है तो ये चीज में बहुत क्वेश्चंस आते हैं गेट में. हम तो आगे स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी डिपेंड्स ऑन दिस थिंग. दिस इज फॉर योर नॉलेज आई एम गिविंग यू. मटेरियल बीइंग मशीन, देन कटिंग स्पीड, फीड, रेक एंगल एंड अदर मशीनिंग पैरामीटर्स. इसके ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे मटेरियल का क्या संबंध है, मटेरियल सॉफ्ट है तो स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी नेचुरली कम लगेगा. कटिंग स्पीड,
कटिंग स्पीड अगर आपका ज़्यादा है, हाँ, तो आपको स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी कम लगेगा, बट आपका टूल वेयर होने का चांस ज़्यादा है, तो आपको कूलेंट अप्लाई करना पड़ेगा। बट एक लिमिट से आगे आप कटिंग स्पीड नहीं लेके जा सकते, क्योंकि कटिंग स्पीड एक लिमिट से ज़्यादा आप लेने के बाद आपका टूल लाइफ और कम होता जाएगा। तो वो एक पर्टिकुलर, मैं आपको वो ग्राफ बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद वही हम टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन जो लेने वाले हैं ना, उसके बाद ये कटिंग स्पीड के ऊपर थोड़ा सा गौर करने वाले हैं हम लोग। देन यू टेक फीड, रेक एंगल एंड अदर मशीनिंग पैरामीटर। तो ये फीड यानी मीटर्स पर मिनट, द रेट एट विच योर टूल इज मूविंग, उस पर भी लिमिट होना जरूरी है। देन रेक एंगल, रेक एंगल अगर आपका बहुत कम है तो चिप फ्लो पे प्रॉब्लम आएगा, तो कटिंग स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी बढ़ेगा, तो योर चिप शुड बी फ्रीली मूविंग, ओके। लेकिन वो आप बोलेंगे ले लो ना भरपूर चिप एंगल, रेक एंगल, फिर ऐसा है तो घूमने दो चिप को, बराबर है, ठीक है ना। आपने रेक एंगल ज्यादा कम किया तो टूल का क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है और आपका टूल भी टूट सकता है, तो रेक एंगल के ऊपर भी एक पाबंदी है। तो 5 to 7 डिग्री फॉर स्टील, हमने वो पढ़ा इसके पहले वाले सब स्लाइड, जो टूल के 3 इक्वेशन लिखे थे ना अलग अलग, उसमें हमने डाला है रेक एंगल के इसमें कि व्हाट शुड बी द रेंज, ओके। एंड अदर मशीनिंग पैरामीटर्स, अदर फीड, स्पीड, डेप्थ ऑफ कट, दैट अदर मशीनिंग, थ्री बेसिक पैरामीटर, फीड, स्पीड एंड डेप्थ ऑफ कट। तो इसमें इन्होंने कटिंग स्पीड तो दी है, फीड है, देन डेप्थ ऑफ कट ये एक देखना है, एंड अदर थिंग्स आर योर कूलेंट कंडीशंस। सो कूलेंट्स डिपेंड ऑन डिफरेंट कूलेंट भी डिपेंड है बाद में, कुछ कुछ कूलेंट बहुत तेजी से डेसिपेट करते हैं, ऐसे भी है। तो रिसर्च आया, रिसर्च मेरे पास एक बुक है, ल्यूब्रिकेशन फॉर वेरियस प्रोसेसेस। तो वेरियस प्रोसेसेस के लिए कौन से ल्यूब्रिकेंट होने चाहिए, ये उसका उसमें रिसर्च है। तो आईआईटी में ये सब हम लोग काम करते थे। अभी हमारा इसमें क्या हो गया है कि ये एक मॉड्यूल है, पहले एक सब्जेक्ट रहता था 100 मार्क का, तो वो टाइम वो हम लोग वहाँ वहाँ उतने डिटेल में जाते थे। अभी उतना जा नहीं सकते, क्योंकि हमको 5 मॉड्यूल में 5 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं इसमें, हाँ? सब सब कॉम्प्रेस हो गया ना आपका से। तो इसमें हम लोग हमारा एक लिमिट फिक्स करेंगे, वहीं वहां तक हम लोग स्टडी करके पाएंगे, क्योंकि हमको वो 5 मॉड्यूल का स्टडी करना है, ओके। सो दैट दिस थिंग्स आर देयर, ओके। सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट लेटर ऑन किसी को सेमिनार वगैरह लेना है तो वो ले सकते हैं। फिलहाल तो वो बुक हमारा अभी कॉलेज में है, आईआईटी के जेरोक्स हमने लिए थे, इसके आईआईटी मेन लाइब्रेरी के, उसमें था ल्यूब्रिकेशन फॉर वेरियस प्रोसेसेस, अलग अलग डिटेल है, जितना आप डिटेल जाओ उतना ये है। तो वो जो ल्यूब्रिकेशन वाला है और डेप्थ ऑफ कट, ये इसमें नहीं, अदर मशीनिंग पैरामीटर मतलब वो, ओके। वर्क डन, तो वर्क डन क्या है, वर्क डन बाय टूल इज इक्वल टू वर्क डन इन शेयरिंग और डिफॉर्मेशन ऑफ द मेटल along the shear plane प्लस वर्क डन इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का भी एक ये है ना इसमें जिक्र किया है। तो आपका ये जो कटिंग फोर्स है, हाँ, इनटू वी, सो ये जो है एफ इनटू वी, दैट इज इक्वल टू वर्क डन, ओके, इज इक्वल टू पहला वाला W1 यानी वर्क डन इन शेयरिंग द डिफॉर्मेशन, तो एफएस दैट इज शेयरिंग फोर्स इनटू शेयरिंग वेलोसिटी, तो ये शेयरिंग का गया। और फ्रिक्शन के लिए ये एफ, फ्रिक्शन वाला फोर्स, एंड वीसी कटिंग कटिंग वेलोसिटी, तो ये W2। तो ये आपका केजी मीटर पर मिनट में रहेगा। अभी उसको न्यूटन में अगर आपको करना होएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये न्यूटन में करने के लिए 9.81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ? तो ये देखो ये सब अपना ये है सब, तो ये सब उसके फॉर्मूले हैं, ये मैंने दे दिए, नॉमेनक्लेचर मैंने अलग कलर से यूज किया, ये फॉर्मूला मेन है, ओके। एंड अभी अभी ये सब स्टडी क्यों करने का, बच्चे बोल रहे क्या यार ये फॉर्मूला पे फॉर्मूले लगे, फॉर्मूले पे ये फाइंड आउट करो, करने का क्या है ये सब करके, इतना काय को मगजमारी कर रहे हैं सर, ऐसा बोलेंगे ना, बच्चे बोलेंगे ना, इतना इतना क्यों फाइंड आउट करने का। इसका फायदा क्या है, बाद में एचपी एट कटिंग टूल, हम कटिंग टूल पे हॉर्स पावर कितना आता है वो हम देख सकते हैं, और उतना हॉर्स पावर लेने की कैपेसिटी अपने मोटर की है क्या नहीं, ये हमको मालूम पड़ता है। और उससे मालूम पड़ता है कि ये जॉब वो मशीन पे लेंगे क्या नहीं, नहीं तो ये जॉब का जो ये हॉर्स पावर निकाला हुआ है वो ज्यादा निकला और अपना मशीन कम का ताकत का है, फुल लोड करके वो पूरा जॉब निकालना पड़ेगा। प्लस पहला जो ट्रायल कट लिया उसमें वो मशीन का सरफेस फिनिश का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि एक बार चालू करने के बाद मालूम पड़ेगा ये कैपेसिटी नहीं। इट इज सेम लाइक दैट, एक आधा आदमी 35 किलो वेट उठा सकता है, उसको एकदम 50 किलो की गोनी उसके ऊपर डाल दी, क्या होगा, वो क्रम्बल होगा।
और वो फेंक भी नहीं सकता अभी क्योंकि उसके अंडर वो, तो इट इज लाइक दैट। तो जॉब लोड करने के पहले, मशीन के पहले ये एचपी मालूम पड़ेगा, ये सब इसका फायदा है। कटिंग टूल, डायनामोमीटर और ये मर्चेंट सर्कल, इसका क्या फायदा है अभी आपको मालूम पड़ेगा। ये देखो, ये वर्क हमने किधर गया है हमारा, एफसी, हाँ, एचपी एट कटिंग टूल, सो एफसी इंटू वी, ये जो वर्क डन डिवाइडेड बाय 4500, तो आपको एचपी मिलेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो आईसी इंजन में आप लोग पढ़ोगे डाटा। और एचपी एट मोटर, तो मोटर, हाँ, और एक चीज, मोटर भी फुल एफिशिएंसी नहीं दौड़ रहे, उसमें भी कुछ लॉसेस है, उसका एफिशिएंसी डाउन है, हा? उसकी कंडीशन बराबर नहीं है, हा? तो वो एफिशिएंसी समझो 80% है, तो उससे और उसको डिवाइड करो। एचपी एट मोटर आपको कितना चाहिए, तो यहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट बोल रहा है कि आपका 1.5 एचपी, तो 1.5 एचपी से 80% से, मतलब 0.8 से डिवाइड करो, तो वो कितना आएगा, 0.8 से करेगा तो कितना आएगा रे वो, और बोले तो कुछ 2.1 वगैरह आएगा। तो मतलब 2.1 एचपी का ताकत लेता है कि अपना मोटर, ये अपने को मालूम होना चाहिए। वो अभी कैसे मालूम हो तो उसका अलग प्रोसीजर है। और हाँ, तो उतना उतना कैपेसिटी है क्या। फिर अगर वो बोलेंगे नहीं नहीं ले लो सर आप, 3 एचपी की मोटर है या 4 एचपी की मोटर है, ओके देन वी कैन लोड आवर जॉब। मतलब करंट एफिशिएंसी पकड़ के भी 2.1 होता है अपना एचपी, और अपना मोटर 3 एचपी का है, ले लो बिंदास, ले लो अपने मशीन पे। ये सो ऑल these decisions are taken by this merchant circle, tool dynamometer, and finding out all these things. Okay, so ये फॉर्मूले अपने यहाँ तक खत्म हो गए ना। तो मर्चेंट सर्कल का चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है। अभी ये मर्चेंट सर्कल के ऊपर जो सॉल्व प्रॉब्लम्स वगैरह है ना, तो उसका मैं आपको, एक मेरे पास है कुछ, मैं आपको दे दूंगा भेज के। ये सब अभी जो जो मैंने बताया ना, उसमें डायरेक्टली वैल्यू डाल के है। अभी ये चॉक टाइप और बोर्ड नहीं है ना अपने पास यहाँ, तो मैं आपको डायरेक्टली वो दे दूंगा। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आया तो मैं तो हूँ ही हर एक सेशन में। हाँ, अपने थ्योरी सेशन किस काम के है, फिर बच्चों के साथ बात करने के लिए है ना पूरा। हाँ, लेकिन बिफोर दैट नाउ आई कैन डिस्प्ले दोज थिंग्स हियर। तो मैंने वो रिटर्न नोट्स है, मेरे हैंड रिटर्न नोट्स है, कुछ मेरे पास जेरोक्स है पुराने, तो मैं आपको वो भेज दूंगा। ये चैप्टर होने के लिए मैं इंतजार कर रहा था। मैं एक काम करता हूँ, अगले अगले इसमें अगले टर्म में और एक अपना थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन बाकी है। कौन सा मालूम है क्या, अभी ये मर्चेंट का कंट्रीब्यूशन हो गया टूल लाइफ में। नाउ नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन विल बी टेलर, FW टेलर। ये टेलर एक ऐसा आदमी है जिसने गेज डिजाइन में काम किया, जिसमें तुम्हारे ये टूल लाइफ में काम किया, कटिंग टूल का मैकेनिकल इंजीनियर, और उसने मैनेजमेंट में भी काम किया। टेलर्स थ्योरी बोल के एक मैनेजमेंट में भी बहुत पॉपुलर है, टेलर्स एक्स थ्योरी, वाई थ्योरी। सो टेलर हैज डन contributed a tremendous in this. So you can see the literature, merchants contribution, टेलर्स कंट्रीब्यूशन, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये लोगों ने मैकेनिकल में बहुत कंट्रीब्यूट अपना किया। तो आज हम यहाँ रुकेंगे क्योंकि 12:16 हो गए। नया टॉपिक चालू करने के पहले अपना फ्रेश ये होना जरूरी है। ओके, तो हम एक काम करते हैं, आई विल रिटर्न टू माई दिस मेन सेशन एंड आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। ओके, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। स्टॉप।